So, dear friends, myself Harshad Karada, and you people are watching Law and Life. Friends, I always used to say that today 85% of the problem world facing have a somewhat relevance with the human right. Means they are related to the human right. But unfortunately, we are not giving that much weightage to the human right education. The tragedy of human right education is similar with the tragedy of environmental education. These both subjects are of immense importance, but we are not taking this subject seriously. But today I think that the time has come that we should take this subject seriously. So as a part of this human right education, today we are going to talk about the protection of human right act. So protection of human right. So what actually the enactment? So what we are going to see in this video. So first of all we'll see that what is the background for the enactment, why we have enacted this law. Then again we also see that the establishment of National Human Rights Commission, then State Human Rights Commission, what job these commissions are actually doing, what is their compositions, how their chairmen and members are elected. We'll also see that what are the human rights courts, how they are functioning or is they are functioning. We also see that what are the lacunas in this enactment. We also focuses on 2019 amendment, as we have amended this Protection of Human Rights Act in 2019. We have significantly changed the substance of this enactment. So how these amendments, we also critically analyze this amendment, and we also suggest some basic that law is a dynamic. I always used to say that law is a dynamic and law is always changing, and for that dynamism or for that change or for making a better laws, having a good law is just an ideal situation. We cannot make such a law which is a perfect one, but we at least make it more better and more perfect. So making this protection of human rights more better and more perfect, I also try to provide some recommendatory measures for this amendment for the protection of this human right. It was said by someone that lawyers without knowledge of history of law is a bare mechanic. Means our knowledge with the law is incomplete without having our knowledge of history of law or the object and purpose behind this law. Or we must know that why we have enacted this legislation. Unless and until we do not know this object, purpose and the basic need of this law, we may interpret that law contrary to the spirit of that law. So there may be chances that the substance of that law or that spirit of that law, or we may defeat the purpose of that law. So such an interpretation may be made. So to avoid that interpretation, we must know these things. So first of all, we'll understand that why Protection of Human Rights Act 1993. Friends, as you all know that since 1948, since the Second World War, the world started thinking about the human rights. We have made a Universal Declaration of Human Rights. We have also enacted some conventions like ICCPR, then economic conventions, and many more regional conventions are also there. The American conventions, African conventions, or many more conventions are there. In India also, our Constitution of India has a significant impact of this UDHR on our Constitution. We have introduced fundamental rights. We have also enacted some statutory enactment like National Commission for Women, National Commission for Scheduled Caste, National Commission for Scheduled Tribes. So such acts was also there. Now some bodies also have a constitutional status. So for the protection of weaker sections, or for the protection of women, for the protection of children, or for the protection of as a human beings, we have provided many safeguards and many rights. But there an independent body has to be there to check over that are we implementing these safeguards or are we providing these rights to the people. So to having a check and balance system or having a check over on the government, as we all are aware about that the majority of the human rights violations were done on the side of the government. So can we request that the government should also again protect our human rights if the violation is done by the same people? So it will be against the principle of natural justice. So that is why an independent body has to be there, and for the establishment of independent body, the one Paris Conference in 1991, means 2 years before our Protection of Human Rights Act, a Paris Conference was held in Paris, and they have enforces on this prohibition of establishment of this independent body. United States of America and many other nations started forcing India
that you should put at least one representative of Amnesty International. Amnesty International is an international NGO in your parliament, but our government denies that option and choose the option that we will provide our independent commission for the protection of human rights, which will have a check over our on the protection of our human right. And these commissions we'll see in our next part that what is the job of this commission. So that is what the reason for the protection of this human right law. Now, not to taking too much time, we'll just go to the provisions of this protection of human right, what actually it provides. Friends, now we'll enter into the main body of this enactment or main provisions of this enactment. We'll see what actually the protection of human right provides for. The Act has a near about 43 sections, and these 43 sections are divided in near about 8 chapters. The first chapter provides for the preliminary, just like another enactment. Second chapter provides for the constitution and establishment of National Human Rights Commission. It provides that how the appointment chairman was appointed, how the members are appointed, how many members would be there, their salaries, their resignations, how can be they removed, or some provisions like this, their vacancies. Then chapter 3 is important, which provides that the functions and powers of the commission. It provides that what is actually the commission, what the job actually the commission is doing, how they will their investigation agencies. So these things are provided in chapter 3. Then chapter 4 is provides for the procedure, how the inquiry was done, how the complaint was done. So these things are there in procedure part, chapter 4. Then chapter 5 is important. Chapter 5 provides for the establishment and constitution of State Human Rights Commission, just like as a constitution and establishment of National Human Rights Commission. So this is also in chapter 5. Then chapter 6. Chapter 6 is important, which provides for the human rights courts, establishment of human rights court. So we will see these provisions in chapter 6. Then chapter 7 provides for the finance and account and audit. फाइनेंस अकाउंट एंड ऑडिट, पैसा तो जरूरी है, तो ये चीज़ें इनको पैसा कहाँ से मिलेगा, ग्रांट, सेंट्रल ग्रांट, स्टेट ग्रांट्स, ये सब चीज़ें चैप्टर 7 में दी है. और 8 चैप्टर हर इनैक्टमेंट की तरफ मिसलेनियस प्रोविजंस आर देयर इन 8 इन चैप्टर. सो विल सी what actually the first part provides for. Preliminary, just that will be called as a Protection of Human Rights Act, and it will be extended to the whole India. And here the exception was not given to the Jammu Kashmir, because we always the Human Rights Activist was always complained that the major violations was done in the Jammu Kashmir. So that is what the law is also applicable to the Jammu and Kashmir. Then some definitions like armed forces, chairperson means whom, commission means whom. These definitions are given in definition clause of section 2. Then, not to take in too much time, we'll just enter in the chapter 2. So friends, chapter 2. Chapter 2 is a very important one. It actually provides for the establishment and constitution of the National Human Rights Commission. As we discussed, that the main purpose of this enactment is to provide an independent body for checking over the violations of human rights, and that body was created by this chapter 2. It starts from the section 3. Section 3 is the actual section which provides for the constitution of this National Human Rights Commission. It provides, the clause first provides that the central government shall constitute a body named as a National Human Rights Commission. Means a duty was imposed on the central government to establishment of this body. Clause 2 in this same section 3 provides the actual constitution of this body. It provides that first of all there will be a chairperson, but the chairperson, a person can be appointed as a chairperson only if he has been served as a Chief Justice of India. So this is what the situation before 2019. But after the 2019 amendment, a discretion was given to the appointing committee. Even if a person served as a judge of the Supreme Court, then also he can be appointed as a chairperson of the Supreme Court, Human Rights Commission. Not necessarily only the former Chief Justice of India. Then again, one member who has served as a judge of the Supreme Court. Then again, one member who has been served as a Chief Justice of High Court. Then again, 2 members who are appointed among the person having knowledge of the practical experience in the matter of human rights. So this was also a situation of 2019. After 2019, one member was increased. Now the 3 members will be appointed among the person of having knowledge of human rights. And again, a representation of women is also given, that one member must be a woman. So this is also
a welcoming provision that ladies also getting representation. That majority of the violations, as we are seeing that Nirbhaya case, or many of the women are brutally raping. So their human right violations, they are vulnerable. They are come under the disadvantages group. So for that, their representation must be ensured. So this was ensured in 2019 amendment. Then again, there are some ex officio members to this National Human Rights Commission. National Commission for the Minorities, National Commission for the Scheduled Caste, National Commission for the Scheduled Tribes, National Commission for the Women. So these 4 members are considered as ex officio members. Means whoever will be chairman of this National Commission for Women, he will deemed as a member of this National Human Rights Commissions. So as these bodies are actually, as I told you, that the main purpose of this enactment was to ensure that the whatever safeguards we have provided for the protection of women, protection of minorities, so we are properly implementation. So ensuring this implementation, we have provided this National Human Rights Commission. So their chairman must have a representation in National Human Rights Commission. So that is what ensured in this clause 3. 2019 Act enacted, amended this clause 3, and again a representation given to some other chairpersons also. So we'll see when we were comparing between before 2000 amendment and after 2019 amendment. So we'll have a different discussion on this. सेक्शन 5 आ जाएगा, रिजिग्नेशन एंड रिमूवल. प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को राइटिंग करके वो लोग रिजाइन कर सकते हैं, और उनको जो मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस को निकालने का ग्राउंड है, उस ग्राउंड पे निकाला भी जा सकता है. और जो रेगुलर ग्राउंड होते हैं कि इंसॉल्वेंट हो गया, या कोई पेड एम्प्लॉयमेंट कर रहा है, या अनसाउंड माइंड हो गया, या अनइंफॉर्मेटिव ऑफ माइंड हो गया, या ऐसे गुनाह के लिए कन्विक्टेड हो गया जो विच इन्वॉल्व्स मॉरल टर्पिट्यूड, मतलब नैतिकता को हार्म करता है, ऐसा कोई गुनाह उन्होंने किया तो भी उन्हें निकाला जा सकता है. उसके बाद सेक्शन 6 आता है, टर्म्स एंड ऑफिसेस ऑफ द चेयरपर्सन एंड मेंबर. अभी कितना समय तक रहेंगे, एक तो 5 साल रहेंगे या 70 ईयर तक रहेंगे. ये सिचुएशन था 2019 से पहले का. 2019 के बाद क्या हो गया, उसको रिड्यूस कर दिया 3 ईयर तक. 3 ईयर तक रहेंगे और ज्यादा से ज्यादा 70 ईयर तक एज तक रहेंगे. अभी यहाँ पे भी गवर्नमेंट ने क्या कर दिया है कि डिस्क्रिप्शन डाल दिया कि 3 साल तक बाद अच्छे से रहोगे तो रखेंगे, नहीं रहेंगे तो निकाल देंगे. पहले क्या था कि 5 साल के बाद फर्दर एम्प्लॉयमेंट को उनको नहीं दिया जाता था, मीन्स दे आर इनएलिजिबल फॉर द री अपॉइंटमेंट. बट नाउ अगर आप उस जगह पे रहते हैं और अगर आप अच्छे से गवर्नमेंट जैसा बोल रहे हो वैसा कर रहे हैं, तो आपको 3 साल से ज्यादा भी उसको एक्सटेंड कर सकते हैं. तो have you people understanding what are the consequences of the enactment? Earlier there was a situation that only former Chief Justice of India can be the chairperson of this National Human Rights Commission. Now means a discretion was given to this appointing committee. So wherever there is a discretion, there is a misuse of the power. I am a student of administrative law. I doesn't blame this discretion at all, but we have to minimize this discretion so that the independent functioning of this body. So I criticize this amendment in somewhat provisions, or I also welcome this amendment for the some provisions. Like we have introduced that we have provided a representation to the women. This is necessary, so we must welcome this amendment for this. But providing discretion to the government, reducing their time tenure, और उनका मतलब अभी आप अगर आपके रिटायरमेंट के बाद हम आपको इस बॉडी पे अपॉइंट करेंगे, इस बॉडी पे अपॉइंट करेंगे, ऐसा प्रॉमिस देके सुप्रीम कोर्ट के जजेस को इन्फ्लुएंस किया जा सकता है. अभी तो चीफ जस्टिस ऑफ रंजन गोगोई तो राज्यसभा के मेंबर बन गए. तो जजेस को ऐसी चीजें से लालसा नहीं होनी चाहिए, ऐसा मुझे पर्सनली लगता है. तो एक बात हो गई. टर्म्स ऑफ ऑफिस में पहले 5 साल का था, बाद में नहीं होना है, और अभी क्या कर दिया कि 3 साल का रहेगा और बाद में भी हो सकता है. तो ये 3 साल तक ये कैसे रहेंगे, गवर्नमेंट का सुनते रहेंगे ताकि फर्दर एम्प्लॉयमेंट चाहिए. तो ये चीजें मुझे यहाँ लगता है कि अमेंडमेंट यहाँ पे गलत हो रहा है. तो एक हो गया सेक्शन 6. उसके बाद 7th सेक्शन आता है, मेंबर एक्ट एज ए चेयरपर्सन टू डिस्चार्ज फंक्शन ऑफ सर्टेन सर्कमस्टेंसेस. अगर चेयरपर्सन नहीं है तो बाकी के मेंबर भी उसका काम कर सकते हैं. तो ये एक हो गया. और बाकी के कुछ प्रोविजंस है इसमें. वैकेंसीज हो गया, वैकेंसीज है अगर तो उनका प्रोसीडिंग जो है वो इनवैलिड नहीं रहेगा.
ऐसे प्रोविजंस तो हर एक जहाँ पे कहाँ पे कोई किसी बॉडी को कॉन्स्टिट्यूशन देते हैं, उसको कुछ काम देते हैं, तो वैकेंसीज की वजह से उसका काम इनवैलिडेट नहीं होता, तो ऐसे प्रोविजन यहाँ पे देने होते हैं। उसके बाद इंपॉर्टेंट चैप्टर आता है फंक्शंस एंड पावर्स ऑफ द कमीशन। ये चैप्टर 3 में दिया है। अभी चैप्टर 3 क्या कहता है, फंक्शंस क्या क्या है, इंक्वायरी करना है, सो मोटो भी कर सकते हैं या पिटिशन के ऊपर भी कर सकते हैं। कोई पर्सन ने अगर पिटिशन दिया है कि यहाँ पे ह्यूमन राइट का ग्रॉस वायलेशन हुआ है और आप प्लीज इसको इंक्वायर करें, तो इस पे इंक्वायरी हो सकता है। देन अगेन वायलेशन ऑफ कंप्लेंट कौन सा होना चाहिए, वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट, रिगार्डिंग द वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट और अबेटमेंट देयर ऑफ। Then again, negligence in prevention of such violation by public servant. So even if a public servant is neglecting the violation of human right, so inquiry against that public servant can also be committed by the suo motu by the National Human Rights Commission, or again a person can also provide a petition, also can initiate a petition also. Then again, to intervene in any proceeding involving the allegations of violation of human right. So wherever the National Human Rights Commission thinks that there is a gross violation of human right, so it can join as a party or it can intervene in that matter, or like a amicus curiae जो होता है कोर्ट को हेल्पिंग हैंड प्रोवाइड करता है, तो उस तरह से ये नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन वहाँ पे भी ज्वाइन कर सकता है। उसके बाद विजिटिंग जेल्स और वेयर पर्सन आर डिटेन, वहाँ पे ज्यादा से ज्यादा लोगों को वायलेशन ह्यूमन राइट का वायलेशन होने का चांसेस होता है। So this National Human Rights Commission can visit these places or check that is that people are getting a proper human treatment. Review the safeguards provided by under the Constitution of India and any other law. Now what are these safeguards? Under the Constitution of India we have provided some fundamental rights. We have provided some right to the scheduled caste, scheduled tribe. We have special enactment like scheduled caste, scheduled tribe act enactment. Then again, for example, take example of maternity benefit, which provides the paid leaves for the women. If some company is not providing, so or if the maternity benefit act needs some amendment, so these acts was reviewed by the National Human Rights Commissions. These acts also, these commissions also provides a annual report to the central government that we think that these enactment needs some amendment and you should at least work on this. So इस तरह से भी होता है। उसके बाद रिव्यू द फैक्टर्स इंक्लूडिंग एक्ट ऑफ टेररिज्म का एक्ट वगैरह जो है उसमें भी वो देखता है। स्टडी ट्रीटीज, नाउ वी आर सिग्नेटरीज टू द मेनी मोर ट्रीटीज, सो इट इज जस्ट द वर्क इज नॉट इनफ, जस्ट साइनिंग ट्रीटी इज नॉट इनफ, we need to at least ratify these treaties. Signing is treaty is different one and ratification of treaty is different one. Ratification means implementing or providing legal measures. If suppose one treaty provides for the rights of some ladies, so India has suppose signed that treaty, then we also need to provide that right in our Indian laws, or this, in case of violation of these rights, that Indian ladies must have an access to the Indian courts. So the implementation machinery has to be there. So that is what the ratification of treaty. So it is also job of National Human Rights Commission to study the various treaties regarding the national protection of human right, and also check over that are we implementing this treaty or what is necessary for implementation of this treaty. So such recommendations was also provided by this National Human Rights Commission. Then again, undertake and promote research in the field of human right. So ये भी जरूरी है, वो भी करते हो. Spread human right literacy. I told at the starting of our lecture that the 85% of the problem today world facing was regarding the or related to the human right education, but unfortunately we are giving a very less importance. Less importance means what? That we just have an 1 year lecture for the human right in our year syllabus, or means a separate human right education was not provided. Human right education is such that we have to provide to the everybody irrespective of his specialization. He might be from chemistry, he might be from zoology, or he might be from mathematics, but if he is a human, we need to provide the human right education to these people. Unless and until people are aware about their rights, how can they fight? So that job was also done by this National Human Rights Commission. Then again, encourage efforts of the non-governmental organizations. Many more NGOs are working for the protection of human rights. So this NHRC also provides encouragement to these NGOs, because everything cannot be done by this one body. So these NGOs who are working at the grassroots level
has to be encouraged, and this job is also done by this NHRC. Then again, such other functions it may be considered necessary for the protection of human right. So यहाँ पे और कुछ भी काम जो है वो कर सकते हैं, कॉन्फ्रेंस लेना या और कुछ करना, तो ये भी चीजें यहाँ पे कर जाते हैं. Powers related to inquiry. Now just ये काम देना, काम सिर्फ देना ये मतलब जरूरी, मतलब सफिशिएंट नहीं है, कुछ और भी उनको पावर्स भी देनी चाहिए इंक्वायरी के वगैरह. अभी उनको कितने पावर्स है वो सेक्शन 13 में दिया है. Those people who are preparing for the NET examinations, UGC law NET examinations, they also must know the sections of this proper enactment, as this is there in their syllabus. Section 3, then section 4. These important sections also need to be keep in mind, because UGC also asks some factual questions also. So what actually the power these NHRC have? These are all civil court powers, like summoning some, enforcing attendance of witnesses, like discovery for the protection of any document. कोई डॉक्यूमेंट लाने के लिए डिस्कवरी कर सकते हैं, प्रोडक्ट करने के लिए कंपेल कर सकते हैं, एफिडेविट पे एविडेंस ले सकते हैं, रिसीविंग एविडेंस ऑन एफिडेविट, रिक्वेस्टिंग एनी पब्लिक रिकॉर्ड मांग सकते हैं, इशूइंग कमीशंस कोई कमीशन अपॉइंट करके विटनेसेस को एग्जामिन कर सकते हैं. उसके बाद एनी अदर विच में भी प्रिस्क्राइब, जो भी यहाँ पे प्रिस्क्राइब है वो भी उनको पावर्स हैं. जो है इन्वेस्टिगेशन के बारे में बताता है, मतलब जो इंक्वायरी के लिए जो चीजें होती है वो इन्वेस्टिगेशन के लिए भी इनको दी है. मतलब अभी इनके पास स्पेशल कोई एजेंसी ज्यादा है नहीं, तो ये गवर्नमेंट के जो भी एजेंसीज है, इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, उनको यूज कर सकते हैं. और जब ये इन्वेस्टिगेशन एजेंसी उनके लिए काम करते हैं, देन दे मे सब्जेक्ट टू द अंडर द डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ द कमीशन. तो यही प्रोविजन सेक्शन 14 में दिया है. तो उस टाइम उस एजेंसी को एक कमीशन के डायरेक्शन पे काम करना होता है. सेक्शन 15 बोलता है स्टेटमेंट मेड बाय पर्सन टू द कमीशन, वो उसके खिलाफ एविडेंस में उसमें यूज नहीं किया जाएगा, जनरल एविडेंस के रूल्स में दिया है. उसके बाद सेक्शन 16 पर्सन लाइक टू बी प्रिजुडिशियसली अफेक्टेड बाय द हर्ड, ये भी जनरल एविडेंस के रूल्स उसमें दिया है, उसमें ज्यादा कुछ है नहीं. उसके बाद चैप्टर 4 आता है प्रोसीजर का, इंक्वायरी इनटू कंप्लेंट्स. अभी उसके कंप्लेंट कर सकते हैं आप नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन को, और उसमें जो है इंक्वायरी करने का अधिकार भी ये कमीशन को दिया है. कमीशन वाइल इंक्वायरी इनटू द कंप्लेंट वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट में कॉल फॉर इन्फॉर्मेशन मांग सकते हैं, रिपोर्ट फ्रॉम द सेंट्रल ऑफ गवर्नमेंट और एनी स्टेट गवर्नमेंट और अथॉरिटी. ये पावर भी उनको यहाँ पे सेक्शन 17 में दिया है. अभी इसमें क्या है कि प्रोवाइडेड दैट इफ द इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट इज नॉट रिसीव्ड विद इन द टाइम स्टिपुलेटेड बाय कमीशन मे प्रोसीड टू इंक्वायरी इनटू द कंप्लेंट ऑफ इट्स ओन. तो ये खुद की इंक्वायरी चालू कर देते हैं. अगर इंक्वायरी वो लोग नहीं दे रहे हैं तो ये खुद का उनका इंक्वायरी चालू कर देते हैं. तो ये एक हो गया. उसके बाद स्टेप ड्यूरिंग द आफ्टर इंक्वायरी, क्या क्या स्टेप ले सकते हैं. व्हाइल द इंक्वायरी डिस्क्लोजेस इन कमीशन ऑफ वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट, प्रिवेंशन ऑफ वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट. तो पब्लिक सर्वेंट है तो इट मे रिकमेंड दैट कंसर्न गवर्नमेंट अथॉरिटी टू मेक अ पेमेंट और कॉम्पनसेशन टू डैमेजेस दे दो उसको, ऐसा ये रिकमेंड कर सकते हैं. सब कुछ रिकमेंडरी है. जो चीफ जस्टिस ऑफ एच एल दत्तू थे, द फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ एच एल दत्तू, और हु इज अ चेयरपर्सन ऑफ दिस नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, ही कॉल दिस नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन एज अ toothless tiger. Means of course it is a tiger, as the many more functions is performed by the National Human Rights Commission, many more powers are given to the National Human Rights Commission. Or the concept is very important, as it means providing an independent authority for the checking over the violations of the human right. अभी ये कंसेप्ट ही ऐसा है कि इसको बहुत मतलब टाइगर जैसा पावर देता है, मगर इसको दांत ही नहीं है, मतलब टूथ ही नहीं है. तो अभी टूथ नहीं है मतलब क्या है, सब कुछ जो भी बोलता है सब कुछ रिकमेंडरी है. रिकमेंड कर सकता है कि आपने इसका लॉस किया है, आप इसको पैसे दे दो, या विक्टिम को कुछ जरूरी चीजें तो दे दो. इनिशिएट प्रोसीडिंग कर सकते, इनिशिएट प्रोसीडिंग करने के लिए कोर्ट को बोल सकता है, या टू टेक सच फर्दर एक्शंस एज मे थिंग्स फिट, ऐसे कुछ एक्शंस ले सकता है, मगर कंपेल कुछ भी नहीं कर सकता. आप समझ रहे हैं. तो ये एक रिकमेंडरी बॉडी है, एक टूथलेस टाइगर है. तो ये सेक्शन 18 हो गया. उसके बाद सेक्शन 19 प्रोसीजर विथ रिस्पेक्ट टू आर्म फोर्सेस. आर्म फोर्सेस से ज्यादा क्या होता है, वायोलेशन होता है. इट में आइदर ऑन इट्स ओन मोशन और रिसिप्ट ऑफ पिटिशन सीक रिपोर्ट फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट. सेंट्रल गवर्नमेंट से रिपोर्ट लेना होता है, खुद ज्यादा कुछ कर नहीं सकते. आफ्टर द रिसिप्ट ऑफ रिपोर्ट इट में आइदर नॉट प्रोसीड विद द कंप्लेंट एज द केस में बी, और मेक रिकमेंडेशन टू दैट गवर्नमेंट. गवर्नमेंट को रिकमेंड कर सकते कि प्रोसीजर इनिशिएट करो. अभी आर्म फोर्सेस भी मतलब बहुत सीरियस, वो आसपा वगैरह जो लॉज है बॉर्डर एरियाज में जहाँ पे सिक्योरिटी का बहुत इशू होता है, तो वहाँ पे बहुत मेजर वायलेशंस होता है.
मगर फिर भी वहाँ पे नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन जाके कुछ भी नहीं कर सकता। पहले सेंट्रल गवर्नमेंट से रिपोर्ट लेना पड़ता है और बाद में भी सब कुछ चीज़ें होती है। उसके बाद सेक्शन 20 है, एक इम्पॉर्टेंट है, एनुअल एंड स्पेशल रिपोर्ट टू द कमीशन। अभी सेंट्रल गवर्नमेंट को क्या है कि वो रिपोर्ट देना होता है, ईयरली रिपोर्ट देना होता है कि इस तरह से भारत में ह्यूमन राइट का प्रोटेक्शन हो रहा है, इन लॉज के बारे में। मैंने आपको बताया कि लॉज को वो रिव्यू कर सकते हैं। जो भी लॉज हमने ये डिसएडवांटेजेस पीपल को, वुमेन्स, चिल्ड्रंस, लेडीज, एलजीबीटी कम्युनिटीज और एनीथिंग जो भी जिसका डिफरेंटली एबल पीपल्स, तो इन लोगों के राइट्स के लिए जो भी लॉज बनाए हैं, जो भी सेफगार्ड्स कॉन्स्टिट्यूशन ने दिए हैं, उनको इम्प्लीमेंटेशन के रिकमेंडेशन ये लोग दे सकते हैं। तो ये एनुअल रिपोर्ट सेक्शन 20 में दिया है। उसके बाद सेक्शन 21 आता है, चैप्टर 5। चैप्टर 5 प्रोवाइड्स फॉर द एस्टेब्लिशमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन। सेम पैरेलल प्रोविजंस है, ज़्यादा इसमें कुछ आप भी अगर देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। मतलब स्टेट गवर्नमेंट, अभी वहाँ पे क्या था, सेंट्रल गवर्नमेंट, यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगा, कॉन्स्टिट्यूट करेगा बॉडी नेम्ड एज अ स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन। जो भी स्टेट का नाम है, महाराष्ट्र ह्यूमन राइट कमीशन ऐसा सपोज, तो ऐसा नाम हो जाएगा। उसमें कौन कौन रहेगा, चेयरपर्सन रहेगा, हु हैज बीन चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। अभी 2019 में उसमें भी क्या हो गया अमेंडमेंट, ये नहीं जजेस ऑफ हाई कोर्ट। उसके बाद 1 मेंबर हु हैज बीन जजेस ऑफ द हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट जज एज अ मिनिमम 7 ईयर एक्सपीरियंस। म्हणजे डिस्ट्रिक्ट जज का 7 साल का एक्सपीरियंस है या हाई कोर्ट का जज है। उसके बाद 1 मेंबर हु हैज अपॉइंटेड अमंग द पर्सन हैविंग द नॉलेज ऑफ एक्सपीरियंस इन द मैटर ऑफ ह्यूमन राइट। ह्यूमन राइट का नॉलेज वाला एक रहेगा। तो ऐसे ये 3 मेंबर का बॉडी यहाँ पे दिया है। उसके बाद सेंट्रल में भी एक प्रोविजन हम भूल गए, वहाँ पे भी एक सेक्रेटरी रहेगा और यहाँ पे भी एक सेक्रेटरी रहेगा। वो सेंट्रल सेक्रेटरी के लेवल का रहेगा। यहाँ पे शैल बी सेक्रेटरी हु शैल बी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ द स्टेट कमीशन शैल एक्सरसाइज द पावर एंड फंक्शंस डिस्चार्ज द स्टेट कमीशन में डेलीगेट टू हिम। तो यहाँ पे भी एक सेक्रेटरी रहेगा। उसके बाद हेडक्वार्टर ऑफ द स्टेट कमीशन जहाँ पे स्पेसिफाई करेगा वहाँ रहेगा। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन का स्टेट क्वार्टर दिल्ली में रहेगा। तो ये ऐसे नेट के लिए आज आता है ऐसा क्वेश्चन। तो ये मेंबर हो गया। उसके बाद यहाँ पे सेक्शन 22 है, अपॉइंटमेंट चेयरपर्सन मेंबर ऑफ द स्टेट कमीशन। वहाँ पे भी एक रिकमेंडेशन कमेटी रहेगी। वहाँ पे कैसे प्राइम मिनिस्टर का अंडर था, यहाँ पे चीफ मिनिस्टर चेयरपर्सन रहेगा। उसके बाद स्पीकर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली रहेगा। उसके बाद मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ होम, चीफ मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, स्पीकर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली और लीडर ऑफ द अपोजिशन पार्टी। यहाँ पे सिर्फ लेजिस्लेटिव असेंबली का कुछ नहीं दिया है। अगर आप पैरेलली देखेंगे तो वहाँ पे जैसे काउंसिल ऑफ स्टेट को दिया है। काउंसिल ऑफ स्टेट के 2 मेंबर रहते हैं, एक लीडर वाला और दूसरा डिप्यूटी चेयरमैन वाला, मतलब अपोजिशन वाला और दूसरा डिप्यूटी चेयरमैन। चेयरमैन यानी वाइस प्रेसिडेंट नहीं होता है, ये आपको याद रखना है। मतलब एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त यहाँ पे गलती होता है। तो ये एक रिकमेंडेटरी बॉडी हो गई और उसका कॉन्स्टिट्यूशन भी हो गया। उसके बाद रेजिग्नेशन रिमूवल, वहाँ पे प्रेसिडेंट को देते थे, यहाँ पे गवर्नर को देना पड़ेगा। वह रेजिग्नेशन रिमूवल और का चेयरपर्सन का, वहाँ पे प्रेसिडेंट को रेजिग्नेशन देना पड़ता था, यहाँ पे गवर्नर को देंगे। ग्राउंड ऑफ प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी के लिए निकालेंगे। उसके बाद सेम प्रोविजन वो इंसॉल्वेंट वाले वगैरह। उसके बाद टर्म्स एंड ऑफिस, यहाँ पे भी सेम 70 ईयर्स और 5 साल पहले था, अभी क्या हो गया 3 साल हो गया। बाद में भी अपॉइंट कर सकते हैं, रीअपॉइंटमेंट हो सकता है। तो इस पे भी हमने क्रिटिकली एनालाइज उसको किया था। उसके बाद मेंबर्स ऑफ चेयरपर्सन डिस्चार्ज फंक्शन सर्टेन सर्कमस्टेंसेस, चेयरपर्सन नहीं हो तो मेंबर डिस्चार्ज करेंगे। तो ये जो पूरे के पूरे प्रोविजंस है, ये पूरे के पूरे नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन से पैरेलल है। आप भी देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएंगे, नहीं भी पढ़ेंगे तो भी लॉजिक से आपको मिल जाएंगे। अगर आप नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन को प्रॉपर करते हैं तो इसके लिए आपको अलग से स्टडी करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद ह्यूमन राइट कोर्स फॉर द पर्पज ऑफ प्रोवाइडिंग स्पीडी ट्रायल of the offenses arising out of the violation of human right. State government, अभी now providing human right code is a duty on the state government and not on the central government. So ये आपको याद रखना है। यहाँ पे state government may with the concurrence with the chief justice of high court. अभी state government है तो chief justice of high court का ही concurrence रहेगा। By the notification specify each district court district a court of session. हर एक district को court of session को क्या रहेगा, एक human right code. Try the state offenses. अभी ये स्टेट ऑफेंसेस क्या है यहाँ पे दिया नहीं है। प्रोवाइडेड दैट नथिंग इन दिस सेक्शन शैल अप्लाई इफ कोर्ट ऑफ सेशन इज ऑलरेडी स्पेसिफाइड एज स्पेशल कोर्ट। कोर्ट ऑफ सेशन को ऑलरेडी स्पेसिफाइड किया तो अलग से करने की जरूरत नहीं है, और स्पेशल कोर्ट इज ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूटेड तो भी जरूरत नहीं है। अभी यहाँ पे एक स्पेशल कोर्ट इस्टेब्लिश करना सफिशिएंट नहीं है तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर भी होना चाहिए, जैसे सीआरपीसी में वगैरह होता है हमने। तो यहाँ पे स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर कैसे रहेगा फॉर एवरी ह्यूमन राइट कोर्ट, हर एक डिस्ट्रिक्ट में।
द स्टेट गवर्नमेंट शैल विद बाय नोटिफिकेशन स्पेसिफाई पब्लिक प्रोसिक्यूटर और अपॉइंट एडवोकेट हु हैज अ प्रैक्टिस नॉट लेस देन 7 years। अभी ये 7 years आपको याद रखना है फैक्चुअल क्वेश्चन के लिए या आपको याद रखने के लिए। तो ह्यूमन राइट कोर्ट रहेंगे स्टेट गवर्नमेंट चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट से कॉन्करेंस के बाद में इस्टेब्लिश करेंगे। उसके बाद स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर भी नोटिफिकेशन करके ये हो जाएगा और एडवोकेट को 7 साल से कम एक्सपीरियंस नहीं होना चाहिए। अभी ह्यूमन राइट कोर्ट के प्रोविजन भी अगर आप देखेंगे यहाँ पे प्रॉपरली दिया नहीं कि कौन से ऑफिस ह्यूमन राइट के ये है, और यहाँ पे कॉग्निजेंस का भी प्रोविजन नहीं दिया है। अभी 193 वगैरह अगर आप देखेंगे, सीआरपीसी के अगर आप प्रोविजन देखेंगे तो वहां पे दिया है कि सेशन जज जो है डायरेक्ट कॉग्निजेंस ले ही नहीं सकता। तो यहाँ पे क्या दिया है कि सेशन जज रहेगा। अभी कॉग्निजेंस मैजिस्ट्रेट को लेना चाहिए, ये कॉग्निजेंस कौन सा मैजिस्ट्रेट लेगा ये यहाँ पे दिया नहीं है। तो इसकी वजह से ये प्रोविजन मतलब ना के बराबर होती है। कॉग्निजेंस सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारे जजमेंट्स हैं, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एट्रॉसिटी का अगर आप लॉज देखेंगे मतलब शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब का, तो उसमें बहुत सारे जजमेंट सुप्रीम कोर्ट के आ गए कि उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि स्पेशल जज को अपने सेशन जज को पावर दिए कॉग्निजेंस लेने के, मगर अगर वो कॉग्निजेंस खुद ले रहा है तो ये मतलब कॉन्ट्रेरी टू द सीआरपीसी है। आप समझ रहे हैं, ये मतलब दिस इज इनकंसिस्टेंट विद द सीआरपीसी। तो उसको सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बार फटकारा था। तो उसकी वजह से हमने एट्रॉसिटी एक्ट को अमेंड किया और उससे हमने सेशन जज को डायरेक्टली पावर दे दिया कि आप जो है इस केसेस में डायरेक्टली कॉग्निजेंस ले सकते हैं। कौन सा एट्रॉसिटी है वो वहां पे दिया है, मगर यहाँ पे दिया है क्या? अभी मैंने आपको कहा कि 85% ऑफ द केसेस लिंक होते हैं ह्यूमन राइट से, तो क्या आप हर केस में ह्यूमन राइट लिंक करेंगे? तो यहाँ पे स्पेसिफिकली ऑफेंसेस देने चाहिए, वो यहाँ पे दिया नहीं है। तो ये एक सजेशन रहेगा। उसके बाद सेशन जज को डायरेक्टली कॉग्निजेंस लेने का पावर भी देना चाहिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट आते हैं बीच में, वो कहते हैं कि सेशन जज डायरेक्टली नहीं ले सकता है। तो एक है, तो ये ह्यूमन राइट कोर्ट के कुछ मतलब सजेशंस इसमें होने चाहिए। उसके बाद फाइनेंस अकाउंट एंड ऑडिट, अभी क्या रहेगा 32 सेक्शन से है वो। 32 बोलता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ग्रांट दे सकता है, 33 बोलता है स्टेट गवर्नमेंट से ग्रांट दे सकता है। ऑडिट किसको कौन करेगा? कैग का ऑडिट दिया है सेक्शन 34 में। ये भी ऐसे कुछ प्रोविजंस हो गए। उसके बाद कुछ मिसलेनियस मैटर्स है। मिसलेनियस में क्या क्या आएगा कि मैटर नॉट सब्जेक्ट टू द जुरिडिक्शन ऑफ कमीशन, कमीशन शैल नॉट इंक्वायर एनी मैटर विच इज पेंडिंग बिफोर द स्टेट कमीशन, स्टेट कमीशन का उसमें ये ज्यादा इंटरफेयर नहीं करेगा। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम, नॉट स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन एनी अदर लॉ फॉर द टाइमिंग इन फोर्स वेयर द गवर्नमेंट कंसिडर नेसेसरी, गवर्नमेंट के ऊपर मतलब मर्सी ऑन द मर्सी ऑफ गवर्नमेंट। अभी ज्यादा से ज्यादा वायोलेशन गवर्नमेंट के ऊपर है, गवर्नमेंट काय को करेगा? तो ये सब चीजें यहाँ पे ये भी लैकुनाज इसमें है। जैसे वो ये लॉज को अगर आप ऐसे ये करके देखेंगे कि ये लॉज में ये लैकुना है, वो लॉज में ये लैकुना है, तो आप लॉ के मास्टर हो जाएंगे। मतलब ये मेरा ऑब्जर्वेशन है। हमें ऐसे लॉज को ऐसे ये करके देखना चाहिए। वो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट है आपका हमारा 1988 का, उसमें अगर आप देखेंगे कि प्रोसीडिंग इनिशिएट तभी होता है जब सेंट्रल गवर्नमेंट उसको कंसेंट देता है। अभी प्रोसीडिंग इनिशिएट करना है सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय के अगेंस्ट, अभी उसी से कंसेंट मांगेंगे तो ये प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस के खिलाफ जाएगा। यहाँ पे भी ऐसा है, गवर्नमेंट की मर्जी पे ये देना मतलब थोड़ा सा अजीब लगता है। तो इन्वेस्टिगेशन टीम खुद का होना चाहिए। अभी यहाँ पे नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन डिपेंड है बाकी इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज पे। पुलिस वाले के ऊपर पुलिस वाले के सामने हाथ फेरो, ये CIB के सामने ये करो, वो उसके IB के सामने ये करो, खुद का इन्वेस्टिगेशन टीम देना चाहिए। ह्यूमन राइट कमीशन इतना बड़ा मतलब इतना जरूरी है। मैंने आपको कहा कि ऑब्जेक्ट एंड पर्पस, अभी यहाँ पे क्या हो रहा है? ऑब्जेक्ट एंड पर्पस डिफीट हो रहा है या उसका स्पिरिट को हार्म हो रहा है। पर्पस क्या है कि इंडिपेंडेंट एजेंसी फॉर्म करना है, इंडिपेंडेंट एजेंसी टू बी फॉर्म फॉर द चेकिंग ओवर द वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट। तो क्या ये पर्पस यहाँ पे सॉल्व हो रहा है? तो यहाँ पे नहीं हो रहा है। उसके बाद उन्होंने ये ऑब्जेक्ट में ये पर्पस डाला ही नहीं है। ऑब्जेक्ट में ये सिर्फ ये कि नेसेसरी फॉर द मतलब ये लॉ क्यों बनाया है? फॉर द प्रोवाइडिंग एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन एंड द ह्यूमन राइट कोड। अभी ये सब 3 बॉडीज क्यों चाहिए? ये 3 बॉडीज इसलिए चाहिए क्योंकि इंडिपेंडेंट एजेंसी बनाना है। तो एक मतलब इम्प्लाइड पर्पज है उसका, इम्प्लाइड पर्पज जो है वो रियल पर्पज है, वो डिफीट हो रहा है ऐसे प्रोविजन से। इफ गवर्नमेंट थिंक नेसेसरी, व्हाट इज इट एक्चुअली? उसके बाद प्रोटेक्शन ऑफ एक्शन टेकन इन गुड फेथ, हर लॉज में ऐसा होता है। पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू मेक रूल्स, ये भी हर जगह होता है। तो इस तरह से एक प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट है। मैं मानता हूँ कि मैंने आपको बहुत सारे प्रोविजन अच्छे से समझाया है। अगर आप UGC लॉ नेट को भी प्रिपेयर कर रहे हो तो आपको हर एक प्रोविजन इसमें क्लैरिटी आ गया है। मगर
2019 का जो अमेंडमेंट है उसको हम अभी थोड़े से अच्छे से देखेंगे कि आखिर मतलब चेंज क्या हुआ है। ज़्यादा से ज़्यादा हमने देखा है, मगर अगर कुछ ज़्यादा है तो वो हम अभी इसमें देखेंगे। तो 2019 में मैंने बोला कि इसको अमेंड कर दिया। पहले क्या होता था कि सिर्फ चीफ जस्टिस जो है और चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट जो है वो चेयरपर्सन नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन का और स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन का होता था। अभी ये नहीं जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट और ये नहीं जज ऑफ द हाई कोर्ट। अभी यहाँ पे क्या है कि प्रलोभन दिया जा सकता है किसी जजेस को, वर्किंग जजेस को सुप्रीम कोर्ट के, बाद में भी रिटायर होंगे तो भी हम आपको यहाँ पे अपॉइंट करेंगे। तो ये डिस्क्रिप्शन गवर्नमेंट को एक गलत डिस्क्रिप्शन यहाँ पे दिया है। उसके बाद मेंबर 2 पर्सन हैविंग नॉलेज ऑफ द ह्यूमन राइट, अभी यहाँ पे 3 कर दिया और वुमेन को रिप्रेजेंटेशन दे दिया। ये वेलकमिंग प्रोविजन है, इसका हमें वेलकमिंग करना चाहिए। उसके बाद एक्स ऑफिशियो मेंबर्स, पहले तो ये 4 मेंबर रहते थे जो हमने पहले देखे, अभी क्या कर दिया कि सम न्यू मेंबर ऐड कर दिया। बैकवर्ड क्लासेस का जो नेशनल कमीशन है, अभी इसको हमने क्या कर दिया 2018 में हमें अमेंडमेंट कर दिया, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया है। आप जानते होंगे उस अमेंडमेंट के बारे में। तो अभी उसको भी जो है यहाँ पे एक्स ऑफिशियो मेंबर को, उसके चेयरपर्सन को भी हमने रिप्रेजेंटेशन दे दिया। उसके बाद नेशनल कमीशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, इनको अभी कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस नहीं मिला है, मगर फिर भी उनके चेयरपर्सन को एज दीज पीपल आर कंसर्न विद द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट, सो देयर चेयरपर्सन आल्सो नाउ गेट द एक्स ऑफिशियो मेंबरशिप। उसके बाद चीफ कमिश्नर ऑफ द पर्सन विद डिसेबिलिटी ऑफ मेंबर ऑफ NHRC, मतलब चीफ कमिश्नर जो होता है पर्सन विद डिसेबिलिटीज का, उसको भी यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन दिया है। तो ये 3 नए लोगों को रिप्रेजेंटेशन दे दिया है। अभी 4 वो पहले वाले और ये 3, ऐसे 7 लोगों को एक्स ऑफिशियो मेंबर रहेंगे। तो ये NHRC का जो बॉडी है अभी ये बढ़ गया है, तो ये भी आपको मालूम होना चाहिए। नया अमेंडमेंट है तो एग्जाम के लिए पूछ सकते हैं। उसके बाद टर्म ऑफ ऑफिस, चेयरपर्सन एंड मेंबर ऑफ NHRC जो होते हैं पहले 5 साल के लिए रखते थे, अभी जो है 3 साल के लिए रहेंगे। और वो 5 साल का लिमिट जो था, रीअपॉइंटमेंट नहीं होगा उसके बाद, अभी ये रीअपॉइंटमेंट भी होगा। पहले क्या था कि सपोज कोई 3 साल के लिए स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन में है, उसको 2 साल के लिए NHRC में भी रख सकते थे, मगर ओवरऑल जो है उसको 5 साल ही रख सकते थे। अभी वो 5 साल का लिमिट निकाल दे दिया। इफ यू आर लॉयल टू द गवर्नमेंट, वो आप हमेशा वहां पे रह सकते हैं। तो एक गलत अमेंडमेंट यहाँ पे हुआ, ऐसा मुझे लगता है। इसमें एक और चीज ऐसी है कि मतलब 1 साल के बाद अगर कोई वायलेशन होता है ह्यूमन राइट का, 1 साल के पहले अगर हुआ है तो वो कंप्लेन लेके नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के पास नहीं आ सकते। तो ये भी प्रोविजन को निकल जाना चाहिए। ह्यूमन राइट का वायलेशन किन लोगों का होता है? जो डिप्रेस है, जो वल्नरेबल है। अभी ये लोग 1 साल में ही नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के पास जाएंगे, ऐसा डिजायरेबल नहीं है, कुछ टाइम लग सकता है। तो सिर्फ 1 साल का है, उसके बाद नहीं आना, ये जो है इसे भी अमेंडमेंट होना चाहिए। तो ऐसे कुछ लिमिटेशंस इसको दिया है। लिमिटेशंस क्या क्या है मैंने आपको बताया कि खुद का इन्वेस्टिगेशन मैकेनिज्म नहीं है। मतलब इसको कहा जाता है कि इट हैज बीन टर्म्ड एज अ इंडियाज टीचिंग इल्यूजन और द सोली सोबार्जी ने कहा था, मतलब फॉर्मर अटॉर्नी जनरल थे वो, उन्होंने कहा था कि इनकैपेसिटी टू रेंडर द प्रैक्टिकल रिलीफ नहीं दे सकता, इसलिए इसको इंडियाज टीचिंग इल्यूजन ऐसा कहा था। मतलब उसके बाद NRC कैन मेक ओनली रिकमेंडेशन विदाउट पावर टू एनफोर्स डिसीजन। अभी ये भी है, मैंने आपको बोला कि सिर्फ रिकमेंडेटरी बॉडी है। उसको लगता है कि उसको नुकसान हुआ है, उसको वायलेशन हुआ है, उसको पैसे देना चाहिए, ये बोल सकता है कि आप जाके उसको पैसे दे दो, उसका ह्यूमन राइट का वायलेशन हुआ है। तो ऐसे ये रिकमेंडरी बॉडी है। मेनी टाइम्स उसका क्या होता है कि मतलब उसका कुछ सुना नहीं जाता है। गवर्नमेंट अभी इतना दयालु तो है नहीं कि ये रिक्वेस्ट करेंगे वो रोज सुनेगा। उसके बाद लार्ज नंबर ऑफ ग्रीवेंसेस गो अंडर एड्रेस, मतलब उनको एड्रेस ही नहीं किया जाता। और अभी जो इनका अपॉइंटमेंट का प्रोविजन हुआ है कि 3 साल तक रखेंगे, बाद में करेंगे, तो अभी तो ज्यादा से ज्यादा ये प्रोविजन मतलब कंप्लेंट जो है अनएड्रेस ही रहेंगे, उसको एड्रेस ही नहीं किया जाएगा। तो ऐसे कुछ चीजें हैं। आर्म फोर्सेस के बारे में उनके राइट्स बहुत रिस्ट्रिक्ट किए गए हैं, वो भी एक्सटेंड होना चाहिए। आर्म फोर्सेस से भी बहुत ज्यादा ह्यूमन राइट का वायलेशन होता है, तो उनको जो है ये भी मिलना चाहिए, उनके खिलाफ भी उनकी ज्यादा प्रोविजन होना चाहिए। तो ऐसी कुछ चीजें हैं। सजेशंस भी मैंने आपको बहुत सारे इसमें दिए हैं कि क्या क्या चीजें यहाँ पे होनी चाहिए। तो दोस्तों दिस वाज ऑल अबाउट द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट। उसके बाद कुछ सजेशंस भी मैंने आपको पहले से दे दिया है कि ह्यूमन राइट कोड में क्या क्या अमेंडमेंट होना चाहिए, वो 1 साल वाला क्लॉज ऐसे हर जगह पे प्रोविजन डिस्कस करते वक्त हमने उसमें कुछ सजेशंस भी देखा है कि इस लॉ को बेटर बनाने के लिए उसका कितना इंपॉर्टेंस है और उसको कैसे अच्छे से बना सकते हैं। तो ये सब चीजें हो गई। एक क्रिटिकली एनालिसिस भी किया है हमने लॉ का, उसके प्रोविजंस भी समझे हैं, और मुझे लगता है कि एक बारिश के अच्छे से हुआ है। इफ यू लाइक द लेक्चर, कमेंट में इन कमेंट बॉक्स।
It will encouragement for me. And also subscribe the channel and share with your friends, those who are concerned with the protection of human right. Those who are preparing for UGC NET examinations, or those who are the students of human right, or those who are humans at last. Humans also must know aware about this human right education. So friends, at last I must say thank you to you